चलो बेटे. So now we are going to start with our exercise 14.3. Okay, so now in this exercise beta, we are to deal with bar graphs, we are to deal with the frequency polygons and histograms. As you know beta, statistics जो है वो हमारा work easy करने के लिए. आप किसी भी डेटा को बहुत easily सिर्फ देखकर आप उसके बारे में काफी चीजें interpret कर सकते. Like अब जैसे in the very first example, जिसका fifth example है, in a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. ये हमने क्या किया, 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे और उनसे हमने ये पूछा कि आपका बर्थ मंथ क्या है. वो हमने उसके हिसाब से रीडिंग जो है ले ली और देन वी जस्ट प्लॉटेड द ग्राफ. हमने ग्राफ कैसे प्लॉट किया बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने वाई एक्सिस पे ले लिए, मंथ्स ऑफ बर्थ हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए. जैसे जनवरी में इफ यू हैव 3 स्टूडेंट्स तो हमने 3 तक एक बार बना दिया. सिमिलरली फेब, मार्च, अप्रैल में, सिमिलरली टिल दिसंबर. Now just observe the graph and answer the following questions. How many students were born in the month of November? Yes, Parth. कितने students नवंबर में born हुए बेटा? Yes, Parth. Ma'am, 4. 4. Yes, very good. Okay. In which month were the maximum number of students born? Ashi, यहाँ पे हमारा जो ये बार है हाइट, yes, it is 6 है, तो वो कौन से मंथ में है? It is अगस्त. Okay? तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती. Next is a family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures. ठीक है बेटा, ये एक्सपेंडिचर उन्होंने किया. अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है. ठीक है, ये हमने बार ग्राफ बना लिया. ओके ठीक बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था लिखना, दिस इज मिसलेनियस. ओके, सो आई हैव मेड दिस थिंग, सो काइंडली आप भी इसको फटाफट बना लो. राइट, मैंने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे आई हैव टेकन द अमाउंट इन रुपीज, इन थाउजेंड्स. ओके, ठीक बेटा. एंड जो मेरा एक्स एक्सिस है दैट इज ऑल काइंड ऑफ expenditures. Okay, yes, is it clear? Okay, so we are going to start with 14.3. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. इसमें ना causes दिए गए हैं और एक fertility rate, मतलब the death rate. Okay, reproductive health conditions उसमें 31.8% है, neuropsychiatric conditions 25.4%, injuries 12.4%, cardiovascular conditions 4.3%, respiratory conditions 4.1%, and other causes 22.0%. You have to represent the information given above graphically. सबसे पहले हमें graphically इस information को plot करना है. So this is how I have done. We will take y-axis पे हम ले लेते हैं female fertility rate. Okay, I have given the 5 interval gap, and on x-axis I have placed the causes. Okay, then graphing आपने plot कर देनी है. Yes, within 2 minutes इसको बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी. So now you have represented the information graphically. Now just tell me which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide. कौन सा major cause है बेटा? Yes, it is reproductive health condition. Right? Yes, very good. क्योंकि इसमें जो percentage है fertility rate की वो काफी ज्यादा है. Okay, try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause I2 above being the major cause. Major cause क्या हो सकता है? ऐसे कौन से 2 factors हैं? देखो पहला तो ये होता है the stress, right? Stress is there for being a superwoman, right? Stress for being a superwoman. आपको every time you have to be in action only, right? Then
सोसाइटी का प्रेशर, राइट, देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी. सो उस केस में भी लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल हैपन इफ यू गो आउट, लाइक दिस कंडीशन. सो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी. ठीक है, even family में भी you face some problems. We are so lucky that we live with such a beautiful families that nobody forces us to do anything. Our viewpoint is respected, it is given so importance. Then even our kids, they are treated very nicely, they are respected. But in some places even the kids are not respected, like उनको भी इतनी ज़हलत दी जाती है, उनको इतना बुरा बोला जाता है, which is not acceptable. Like humanity तौर पे आप उसको accept नहीं कर सकते हो. But yes, these are some drawbacks in our society. So I hope education changes these, and our new generation, it really it grows like that only. चलिए, next is, okay, so we will move on to the next question. The following data on the number of girls to the nearest 10 per thousand, मतलब इन्होंने round off करके हमें दिया है. And what they are saying, in different sections of Indian society, scheduled caste में number of girls per thousand है 940, scheduled tribe में it's 970, non SC or ST it's 920, backward districts 950, non backward districts 920, rural 930, urban it is 910. So you have to represent the information by a graph, ठीक है, and that too by a bar graph. बार ग्राफ में क्या है, यू कैन गिव द प्लेसमेंट्स, आप बीच में गैप दे सकते हो, लाइक ये जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स है, दिस यू कैन टेक ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और इसे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे. तो कैन यू प्लेस अप द ग्राफ? what conclusions can you arrive at this? Like अगर आप इस ग्राफ को देखो तो what kind of conclusions do you arrive at? Okay, the number of girls are very less as compared to like per thousand boys, yes. And when we are talking about the urban area, वहाँ पे it is, the problem is more severe, right? आप देख सकते हो ना, अगर हम इसको compare करते हैं तो यहाँ पे problem is really severe. So we need to work up, and ये चीजें तो खैर we will discuss in the SST part, so we won't go for it. Okay, so हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि urban areas में the problem of lesser girl child per 10,000 boys is more severe as compared to the other ones. Okay, now next is beta, given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. आपके पास 6 political parties हैं, A, B, C, D, E, F, और उन्होंने जो seats won की हैं respectively 75, 55, 37, 29, 10, 37. So first of all, you have to draw a bar graph to represent the polling results. And which political party won the maximum number of seats? वो तो हमें इसी डेटा को देख के पता चल रहा है कि it is the political party A, right? So now just draw a bar graph of this. Okay, take the seats won on the y-axis and the political parties, right? Right, political parties on the x-axis. Okay, so I'm waiting, right? Now in the next fourth question, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. Okay, आपको एक length दी गई है, range है length की, और number of leaves है. You have to draw a histogram. अब histogram क्या होता है? It is continuous, मतलब आपका जो bars बनते हैं, they are there without any gap. लेकिन अगर आप इसमें देखो, you have gap in that. यहाँ पे 126 पे फिनिश हो रहा है, ये 127 पे बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. कंटिन्यूअस बनाने के लिए यू हैव ओनली वन फंडा. हमें क्या करना होता है, जो आपकी लोअर लिमिट होती है, राइट, उसमें से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0.5 माइनस करके लिख दूंगी. इट विल बिकम 117.5 and this will become 126.5, right? This will become 126.5 and this will become 135.5. हमने लोअर लिमिट में से क्या किया बेटा, 0.5 माइनस कर दिया, यस, ओके, और अपर लिमिट में से हम क्या कर रहे हैं, 0.5 ऐड करते जा रहे हैं. So this will be 144.5. This will become 144.5
and this will become 153.5. This will become again 153.5, then 162.5. This will become 162.5, 171.5. This will again form 171.5 and 180.5. Is that clear? Yes, Anshu, Ashi, आपको ये continuous बनाना आ गया बेटा? Yes, ma'am. Okay, clear बेटा? ठीक है, clear? अब ये देखो, यहाँ पे I have taken the length on the x-axis. ये देखो, यहाँ पे हमने kink बना लिया because we are starting our graph with 117.5. Okay, अब ये क्या है? Without any gap बन रहा है. Yes, y-axis पे आप number of leaves ले लोगे. ठीक बेटा, यहाँ पे हमने ले ली number of leaves और यहाँ हम ले रहे हैं length. So kindly make this histogram and then after that we will do the next questions. Okay. Yes. हाँ जी, अब हिस्टोग्राम तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. नाउ सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. आप इसी सेम डेटा को क्या किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? यस, वी कुड रिप्रेजेंट बिकॉज क्या है बेटा, हम इसको बार ग्राफ बना सकते थे, राइट? बार ग्राफ में तो इफ देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू इंटरवल्स इट्स ओके, राइट? Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? Why? क्या ये ठीक है 153 mm long ही है? No, we won't say because ये एक range given है बेटा. The range is 145 से लेके it has to be 153 mm, right? जो leaf है it can be 145, it can be 146, it can be 147. So there is a range of this, so we can't say कि maximum जो numbers होगा वो 153 का ही होगा, right? We have given a range. Yes, clear है बेटा? ठीक बेटा जी, चलें? चलो. Now we will proceed on to the next question. The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. Lifetime आपको given है in hours, मतलब 300 से 400 hours जो lamps चल रहे हैं वो around 14 है. इस तरह से आपको ये information दी गई है. अब बेटा एक चीज है, अगर सपोज यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं लिखा आपको, ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आपका जो ये अपर लिमिट होती है, जैसे फर्स्ट जो क्लास इंटरवल गिवन है इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट अगर सेम है तो वो हिस्टोग्राम बनेगा. ठीक बेटा, हिस्टोग्राम में आपको मैंने बताया ना विदाउट एनी ब्रेक आता है, तो ये एक छोटा सा क्लू होता है जिससे अगर हमें नहीं गिवन या आप कंफ्यूज मत हो जाना यार ये तो सेम आ रहा है. नो, इट हैज टू बी सेम, राइट? तो वो क्योंकि कंटिन्यूअस तो तभी बनेगा ना जब आपकी एक ही लाइन पे वो ड्रॉ हो रहा है. तो काइंडली मेक दिस हिस्टोग्राम. ठीक है, फटाफट बना दो जल्दी जल्दी. ओके, चलो. So now you have made the histogram. Now tell me how many lamps have a lifetime of more than 700 hours. More than 700 hours मतलब आपको क्या लेना है? You have to add up this, right? तो बताओ मुझे कितने आपके बन रहे हैं ये? Yes बेटा. हाँ जी, कितने बनेंगे more than 700? Right? 74 plus 62 plus 48. Yes. It is 110 plus 74. तो ये आपके कितने लैंप्स आ गए? 184 लैंप्स जो हैं. Yes. Okay. So they have got a time life of about more than 700 hours. Now, the next. The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. ठीक है बेटा, आप देखो ये आपको दो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस के मार्क्स गिवन हैं. ठीक है, रेंज आपको दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी. अब इस केस में दे हैव आस्क्ड अस टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शंस बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. ओके, उसके बाद हमें इसको कंपेयर करना है. सो देखो बेटा, इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला जाता है, ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये तो आपका बन जाता है लाइक दिस विल बी देयर ऑन द वाई एक्सिस. हम इसको यूजुअली वाई एक्सिस पे कंसिडर कर लेते हैं. अब ये इसको हमें बार ग्राफ तो बनाना नहीं. अब रेंज क्या होती है, जैसे सपोज करो ये हो गया 110,
अब इसके बीच में आप 3 कहाँ मार्क करोगे, अब वो दिक्कत हो जाती है। तो हमने क्या करना है बेटा जी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें निकालेंगे क्लास मार्क। Yes, Parth, can you tell me how will we calculate the class mark of this 20 and 30? 20 to 30 का मुझे क्लास मार्क निकालना है। Yes बेटा। मैम 20 to 30 का। हाँ जी, मुझे इसका क्लास मार्क निकाल के बताओ। निकालेंगे कैसे आप मुझे ये बताओ पहले। आशी आप बता सकते हो। पार्थ तो कैलकुलेट कर रहा है ना, मुझे बताएगा, कैलकुलेशन करके बताएगा वो मुझे। आई नो। मैम अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करके। नहीं, वी एड अप और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज, इसका क्लास मार्क क्या बनेगा 20। यस, तो आपने क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये देखो यहाँ पे आई हैव मेड द क्लास मार्क, क्योंकि दोनों सेक्शंस की जो क्लास इंटरवल्स है वो सेम है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का मार्क बनता है 5, नेक्स्ट का 15, 25, 35, 45। ओके, अब आपने कुछ भी नहीं करना, व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव प्लेस द वैल्यूज, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, अब ये है हमारा x और ये बन गया y। तो जैसे हम इक्वेशन से टू वेरिएबल्स में प्लॉटिंग करते हैं ना, वैसे ही प्लॉट करने हैं। जैसे फर्स्ट केस में क्या है 5 and 3, तो ये देखो ये रहा 5 और ये रहा 3। तो ब्लैक कलर से इज सेक्शन A एंड ग्रीन कलर शोज आवर सेक्शन B। ठीक, सो हमने अब इसकी आप फटाफट से प्लॉटिंग करो। लाइक अगर हमें इसको कंपेयर करना हो परफॉर्मेंस को, तो कैसे करेंगे बेटा। क्योंकि देखो, अगर आप इस ग्राफ को देखते हो, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को अगर आप वॉच कर रहे हो, तो व्हाट इज देयर कि जो हमारा सेक्शन ए है वो सेक्शन बी से राइट की तरफ है, राइट है ना। तो सेक्शन ए के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू बी। ठीक बेटा जी, क्लियर। चलो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट बॉल्स ऑफ इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है बेटा, दो टीम्स थी, उनको 60 बॉल्स दिए गए, तो उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, उसके हिसाब से यू हैव टू कंपेयर द डेटा। अब अगर आप इसके इंटरवल्स पे देखो, तो इट इज 1,6, 7,12, 13, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वील हैव टू कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, कंटिन्यूस बनाएंगे, उसके बाद इसका क्लास मार्क निकालेंगे। ओके बेटा, सो कंटिन्यूस के लिए याद है ना आपको हम क्या करते थे, इसमें से माइनस, तो ये भी ये क्या हो जाएगा प्लस, राइट, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद आप इसका क्लास इंटरवल निकाल लेना, क्लास मार्क सॉरी। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा 7 आया, 7/2 इज, फर्स्ट के केस में इट इज 3.5। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट करते जाना बेटा, एंड आफ्टर दैट देन प्लॉट द पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसको प्लॉट करो, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, राइट। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यू कैन इजिली कंपेयर द टू टीम्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। In this question, a random survey of the number of children, ठीक है, of various age groups playing in a park was taken. Age given है आपको और आपको number of children given है, right? And you have to just make a histogram. So just kindly check up कि क्या आपका जो class intervals हैं they are continuous. Ashi, you tell me whether they are continuous or not. कंटिन्यूअस ही है। Continuous है, yes. So just make it, okay.
Now the last question of this exercise is 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. Number of letters दिए और number of surnames दे दिए. आपको एक histogram plot करना है. आप ये बताओ, write the class interval in which there are in which the maximum number of surnames lie. So that will be around 6 to 8. पहले तो पार्थ मुझे बताओ, if the class intervals are continuous or non-continuous? The class intervals are continuous. Yes, Parth. अंशु आप बताओ बेटा. ओके, सो आप इसका हिस्टोग्राम बना लोगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? और मैक्सिमम सरनेम्स जो हैं वो किसमें लाई कर रहे हैं बेटा? दे आर लाइंग इन 6 to 8 कैटेगरी, राइट? Yes, ma'am. Right? So now that's it for today. आज हमारी exercise finish हो गई, and with this, as we have already done 14.4, so we have finished the chapter of statistics also. Okay.